سب لوگ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ سرکار اب مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ جو اقلیتوں کو، جو مائنورٹی کو ملتا تھا ہائر ایجوکیشنس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ اب نہیں دے گی۔ یہ قدم بہت ہی نقصان دہ ہے۔ انہی ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے یہ آرٹیکل انقلاب میں لکھا ہے، تو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں اقلیت سماج سے آنے والے طلبہ میں زبردست ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ان کی یہ ناراضگی بے وجہ نہیں ہے۔ انہیں اعلیٰ تعلیم سے دور کرنے کی ایک بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ انہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ان کا حق وہ لوگ مار رہے ہیں جنہوں نے آئینی منصب پر بیٹھنے سے پہلے اقلیتوں کی ترقی کی قسمیں کھائی تھیں۔ انتخابی ریلیوں کے دوران جن لیڈروں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اقلیتوں کے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں، آج وہی لوگ بدعہدی میں مبتلا پائے جا رہے ہیں۔ بار بار جعفرانی جماعت کے لیڈروں نے سیکولر جماعتوں پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اقلیت بالخصوص مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور جب بات ان کو تعلیم اور روزگار دینے کی ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج وہی زعفرانی جماعت جب اقتدار کی کرسی پر قبضہ جمائے ہوئے ہے تو وہ ترقی کے اپنے وعدوں سے منہ موڑ رہی ہیں۔ اقلیتوں میں ناراضگی کا موضوع مولانا آزاد اسکالرشپ ہے، جسے اب بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ مولانا آزاد اسکالرشپ کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اقلیت سماج سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ مالی امداد دی جائے تاکہ وہ بھی کالج، یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں سے اپنی پڑھائی پوری کر سکیں۔ جب وہ تعلیم حاصل کر پائیں گے تو وہ ملک اور معاشرے کی تعمیر میں اپنا رول ادا کر پائیں گے، اور اس طرح فیصلہ سازی میں ان کی بھی شمولیت یقینی بن پائے گی، اور بھارت کی جمہوریت مزید گہرائی پائے گی۔ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ ہندو اعلیٰ ذات کے مقابلے میں اقلیت بالخصوص مسلمان بہت ہی پیچھے ہیں۔ غریبی، ناخواندگی، فسادات اور حکومت اور سماج کے امتیازی رویے کی وجہ سے انہیں پسماندگی کے دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے۔ آگے آنے کے لیے انہیں ہر طرح سے مدد دینے کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ حکومت میں بیٹھے لوگ متعصب دکھ رہے ہیں۔ برسر اقتدار جماعت کو اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کمزوروں کو آگے کیے بغیر سماج آگے نہیں بڑھ سکتا۔ افسوس کی بات ہے کہ ارباب اقتدار فرقہ پرستی اور اقلیت مخالف ذہنیت سے اس طرح بیمار ہے کہ ان کو اقلیتوں کے لیے مختص وظیفہ پیسے کی بربادی سی لگتی ہے۔ یاد رہے کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ بھارت سرکار کی وزارت اقلیتی امور دیتی رہی ہے۔ یہ وظیفہ اقلیتی سماج کے طلبہ کے لیے مختص ہے۔ اقلیتی سماج کے دائرے میں صرف
मुसलमान ही नहीं आते, ईसाई, सिख, पारसी तलबा भी इस वजीफे के हकदार हैं। जो भी तालिब इल्म एमफिल और पीएचडी करना चाहता है और उसको माली इमदाद की ज़रूरत रहती है, उसको आगे बढ़ने के मकसद से यह वजीफ़ा साबिका सरकार ने लाया था। इस वजीफ़े का फ़ायदा उठाकर हज़ारों तलबा ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की है बल्कि अपना और अपने घर वालों का पेट भी पाला है। मगर इस वजीफ़े से मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियाँ भी फैला दी गई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को लगता है कि अक़लियत समाज के तमाम तलबा को मुफ्त में पैसा बांटा जाता है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। अक़लियत समाज के सिर्फ 2% तलबा इस स्कॉलरशिप को हासिल कर पाए हैं। जिन बच्चों को मौलाना आज़ाद वजीफ़ा मिलता है उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब यह कि वजीफ़ा पाने में कुछ ही तलबा कामयाब हो पाते हैं और ज़्यादातर उम्मीदवारों को मायूसी हासिल होती है। इसलिए वक्त की ज़रूरत थी कि इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को दिया जाता और उन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए आगे लाया जाता। मगर हुकूमत की पॉलिसी उल्टी समत में चलती दिख रही है। कुछ दिन पहले लोकसभा में अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने यह कहते हुए अक़लियती समाज को बेहद मायूस किया था कि अब मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बंद करने का फैसला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार बहुत सारे दीगर वजीफ़े दे रही है और अब मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा से जैसे ही मोहतरमा ईरानी का यह बयान जारी हुआ, अक़लियती समाज के तलबे में ज़बरदस्त मायूसी छा गई। सरकार की नीयत पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक सरकार अक़लियत मुखालिफ फैसले ले रही है। कुछ दिन पहले की ही बात है कि अक़लियतों से वाबस्ता प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद किया गया था और अब मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को भी दफन कर दिया गया है। सरकार के नीयत में खोट दिख रही है, मगर इस बदनीयती को छुपाने के लिए वह मसावात का मुखौटा लगा लेती है। इस बार भी खूब प्रचार किया जा रहा है कि सरकार तमाम समाज के लिए वजीफ़ा देने की पॉलिसी अपना रही है, तो फिर किसी मखसूस समाज के लिए वजीफ़ा जारी रखना वाजिब नहीं है। यह बात जितनी अच्छी सुनने में लगती है वैसी है नहीं। दरअसल सरकार का फंड तालीम और दीगर फलाही कामों से कम होता जा रहा है। रोज़गार, तालीम और सेहत अम्मा के शोबे में बड़ा काम करना सरकार की तरजीहात में शामिल नहीं है। मौजूदा सरकार की बड़ी तरजीहात अमीरों को मज़ीद अमीर बनाना है। उनको यह खुशफहमी है कि अमीरों की तिजोरी भर कर ही मुल्क को मजबूत और तरक्की याफ्ता किया जा सकता है। दरअसल परेशान तो हर समाज के लोग हैं। तालीम की ज़रूरत तो सबको है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सब अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, मगर गुर्बत की वजह से बहुत सारे लोग के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। मगर अक़लियत बिलखसूस मुसलमानों का हाल तो बहुत ही बुरा है। आला तालीम में उनके हालात कई शोबों में दलितों से भी ज़्यादा ख़राब है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद खान के मुताबिक आला तालीम के शोबे में मुसलमानों की हालत एससी से भी ख़राब है और एसटी के बराबर है। मिसाल के तौर पर हिंदू आलाजात के 40% तलबा आला तालीम में हैं, जबकि मुसलमान की शरह सिर्फ 16% के करीब है, जबकि दलितों की नुमाइंदगी 21% है। शरह ख्वानदगी पर भी नज़र डालें तो पाएंगे कि मुसलमानों के हालात खस्ता है। जहां हिंदू आलाजात के दरमियान शरह ख्वानदगी 87% के पास है, वहीं मुसलमानों में यह शरह
74% ही हैं, मगर मुसलमानों से मुताल्लिक यह शरह आला तालीम के हलक़े में और ख़राब दिखने लगती है, क्योंकि मुसलमान न सिर्फ अक़लियत है बल्कि वह गरीब भी है। किसी गरीब तालिब इल्म को आला तालीम हासिल करने के लिए माली इमदाद की अशद ज़रूरत होती है। सरकार को चाहिए कि वह अक़लियतों को आगे बढ़ाने के लिए मंसूबा बनाए। फलाही कामों से मुतालिक मंसूबे को ख़त्म करना आईन की रूह की पामाली करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत की कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि अक़लियतों को तरक्की याफ्ता बनाया जाए। वक्त की ज़रूरत अक़लियतों को मज़ीद वजीफ़ा देने की है, न कि उसे ख़त्म करने के लिए बहाना तलाश करने की है। सरकार को चाहिए कि वह अपने फैसले पे नज़रसानी करे और अक़लियतों की तरक्की से मुतालिक अपने आइनी अहद को पूरा करे। जब अक़लियती समाज का एक फ़र्द तालीम हासिल करता है तो वह न सिर्फ अपने लिए, अपने समाज, बल्कि पूरे मुल्क के लिए सरमाया साबित होता है।